See, what we have done till now is the quadratic equation. And in this quadratic equation, alpha and beta are the roots of this equation. And we know few of the things as what is the value of alpha plus beta, alpha into beta, and discriminant, right? Then we have solved one beautiful question, right? A, B, C are integer, then find roots of this quadratic equation. And we have solved by how many methods? कितने मेथड से सॉल्व किया था? 4-5 4-5 मेथड से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, राइट? कि एक आइडिया मैं दिखाना चाह रहा था कि कैसे कैसे आइडियाज हमारे पास होते हैं, एंड उस पर बेस फिर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक सॉल्व किए थे कि हाउ वी कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक, राइट? जब डिग्री 4 थे उसको भी हमने सॉल्व किया था, एंड कुछ बहुत अच्छे सॉल्यूशन आप लोगों के भी आए थे। एंड ये हमने पास्कल ट्रायंगल या पिंगलाचार्य, राइट, ये देखा था किसी ने पिंगलाचार्य? गूगल किया पिंगलाचार्य को, राइट? देखना, शायद गूगल में भी मिलना चाहिए, राइट? यू विल फाइंड दिस पिंगलाचार्य, राइट? सो ये पास्कल ट्रायंगल और पिंगलाचार्य जो था, श्रेयज कैमरा ऑन बेटा, राइट? एंड एवरेज वैल्यूज पर फिर हमने काम किया था, राइट? एंड द लास्ट वाज द ब्यूटीफुल अरेंजमेंट ऑफ दिस when we have to convert this into biquadratic into quadratic, right? So this was the case when coefficient of x to the power 4 and coefficient of constant term, coefficient of x cube and x, and the midterm, right? But you have to be careful and see this carefully, right? There is a plus or minus sign. In both way possible, there is plus or minus sign both way possible. Right. If there is a minus sign, then this will contain minus sign, this will contain minus sign. In that case, you'll take as x minus 1 by x as t, right? Right. Okay. Now, see, now we know that the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, whose roots are alpha and beta, and these three results we have, right? What are the results? Right. If alpha and beta are the roots of this equation, first is alpha plus beta is minus b by a, alpha into beta is c by a, and alpha minus beta is in the mod is root d root d by a is in the mod, right? These three results, right, we have to remember, right? And from this only, you can say we can form a quadratic equation. We can form a quadratic equation when roots are given, right? So you have to write down x square minus sum of the roots into x plus product of the product of roots. is equal to 0, right? Sum of the roots plus product of the roots is equal to 0, right? This is for quadratic. Now, cubic ke liye, again, we have different methods, right? For cubic, right? Right? So, सर लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा तभी ये कर सकते हैं ना? नहीं बेटा, यहाँ पर क्या आएगा देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाई ए इज इक्वल टू 0. So this is a x square plus bx plus c is equal to 0. Right? हाँ X हाँ na plus bx. So it's not necessary कि coefficient of x square must be 1. Right? It could be anything. Right? And we know that if ABC, if you remember this, right, we have already studied, ABC belongs to Q. Q means what? Belongs to Q. What is the meaning of Q? Rational number, right? Rational number. If one root is 2 plus root 3, then other root will be, 2 minus root 3. right, 2 minus root 3. Okay. When
these coefficients are rational, then only we can say this. Now, sum of the roots is 4 and product is, right, a plus b, a minus b, 4 minus 3 is 1. Right, you have sum and product, then you can apply the formula x square minus sum of the root into x plus product is equal to 0. Right, please note down the basic. Okay, done everyone. Now, I'm starting. This is the basic concept. Now, what type of question, right, will be formed, right, that we have to see, right? So, first one. Okay, let's start. If I'm giving you alpha square minus 3 alpha plus 2 is equal to 0 is one equation. And second is beta square minus 3 beta plus 2 is equal to 0, right? दो इक्वेशन मैंने दे दिया. Find value of alpha into beta. Right? What is the value of alpha into beta? Very good. Very good. Very good. I'll request everyone, please switch on your cameras. Everyone. Camera on रखो अपने अपने. Simil, very good. Very fast. Very good, Shreyaj. Ridhima, very good. Very good. Prasam. अनुसार क्या ये लिखा? कॉमा डालने भूल गई. हाँ नहीं, यूनिक आंसर आएगा. Okay, Satvik. Why four options, like three options? Zeal आंसर नहीं दिया बेटा. प्रसम आंसर नहीं दिया. आर्यन, अभिनव, शशांक दिया. ओम, ओम ने दिया शायद ना. ओम आंसर दे दिया आपने? नहीं, नहीं दिया अभी. धवल, गुड गुड गुड. अमोक, गुड गुड गुड. शशांक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. अल्फा इंटू बीटा, राइट. तो ये ऑप्शंस आपके पास जो आए उस पर आप लोगों ने आई गेस काम किया. एंड वेरी गुड, राइट. आपने अल्फा की वैल्यूज निकाली होगी यहाँ से, राइट. तो अल्फा की वैल्यू 1 और 2 और बीटा की वैल्यू भी सिमिलरली आ गई 1 और 2, राइट. वेरी गुड. 1 into 1 एक बार 1 आ सकता है, राइट. 1 into 2 2 आ सकता है. 2 into 2 4 आ सकता है. ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे, राइट, जो हमारे पास अल्फा एंड बीटा, राइट. बट ध्यान से देखना ना, अब क्या एक साथ अल्फा और बीटा दोनों 1 हो सकते हैं? क्या एक साथ दोनों 2 हो सकते हैं या नहीं? राइट. आई होप आप में से अधिकतर लोगों ने यही यही अटेम्प्ट लिया है, राइट. ध्यान से देखो. अगर मैं इसी को उल्टा करके एक क्वेश्चन फ्रेम करता, एक्स सर हम स्क्वायर. लोग तो इसको इक्वेशन भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2. वेरी गुड बेटा. एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 इज इक्वल. अल्फा बीटा रूट्स हो जाएंगे तो c/a. अब यहां से ये डिडक्शन का मतलब क्या होगा कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन.
सो ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हो गए, राइट. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, so alpha into beta is equal to c by a and c by a is 2 by 1, that's answer is 2. तो 1 and 4 के लिए हम थोड़ा सस्पिशियस हो गए. 1 and 4 क्या आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ सकता तो क्यों? आ सकता तो क्यों? Sir, I also answered only two, but Mhm. I had a doubt that it's not given to us that alpha and beta are discrete values or they are related, like they are roots of some equation. Very good. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it's not given कि like in for any for information you have to say कि values are given in this order कि like alpha and beta are the roots of this equation, right? So alpha I'm getting two values, 1 and 2, and beta I'm getting 1 and 2, right? So from this information, if I'm coming, correct answer will be 1, 2, and 4. Perfectly. But if I'm saying that these two are the roots of any quadratic equation and the equation is given as x square minus 3x plus 2 is equal to 0, then we have only one answer, that will be 2. Right? So if only two equations are given and this equation we have to find the value, obviously we have all the four information, right? All four values are possible. But right, if it is given ki it's coming from the second degree equation only, right? Alpha and beta are from one equation only, then only the value 2 will be there, right? Jaise, like if I'm saying, right, the word I'm changing in this, right? सर मैं अब आया हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? बस बेटा कल जो कर रहे थे वही कर रहे हैं. बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा, बट थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ा रहा हूं ना मैं. एक छोटा सा चेंज लाता हूं. फाइंड अल्फा इनटू बीटा. आर यू गेटिंग दिस नाउ? दोनों क्वेश्चन अलग अलग होंगे. इसमें मैंने सिंपली जो लास्ट वाले क्वेश्चंस के सर भेज दिया. पॉसिबिलिटीज थे उसको हटा दिया. अच्छा, वेरी गुड. आते ही तो 6 मार दिया. Right? So in this case, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Alpha and beta are the roots of this equation. So alpha into beta is equal to c by a. That 6 by 1 is 6 only. Because in this case, alpha is not equal to beta. Is this okay? Is this okay, everyone? Right? Condition is required. Then I can say this is coming from this quadratic. Right? Okay. Now, what if I'm just creating one more question on this? Alpha and beta are the roots of quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0. If, first question, beta is equal to n times of alpha, means 2 alpha, beta is 2 alpha, 3 alpha, 5 alpha, then find condition. Condition in terms of कांस्टेंट एन एन, ए बी सी और एन के लिए बेटा. अच्छा, कैमरा ऑन बेटा. कैसा है? सर ठीक हूँ. आज स्कूल नहीं गया? फ्रेश फ्रेश लग रहा तू. सर संडे तो स्कूल नहीं होता. हाँ,
अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा बेटा. You have to eliminate alpha. You have to eliminate alpha. Riddhima, Aryan, Sasank, Dhaval, Diya, switch on your camera, beta. Sir, मतलब what is the subject? Like what should I keep at one side? See, if one root is given as alpha and second is an alpha, right? Like lots of question will come on this. Sir, मतलब I got the relation, but it is very big. Right. See, I'm just showing you. Some the root is alpha plus n alpha is minus b by a, and second is alpha into n alpha is c by a. Right. So from first, what I'm getting, right? From first, I'm getting alpha is equal to minus b by n plus 1 by a. Right. Or for second, alpha square is equal to c by a into, right? So I'm squaring the first one, right? So what I'm getting, b square by n plus 1 square into a square is equal to c by a into n. A cancel out, right? Nb square is equal to n plus 1 n square, right? N plus 1 whole square into ac. This type of result we have to create every time, right? Either it will be given one is alpha, other is 2 alpha, then you have to put value of n is equal to something, or it could be given as alpha and beta is in the ratio of 3 by 4. Then we have to find the conditions. Then n is equal to 3 by 4, right? Something like that. Okay. Okay, everyone. So try next one. If I'm saying one root is alpha, other root is alpha square, for the quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0, find condition. This is a beautiful condition and very important question, right? Are you सर तो एन अल्फा प्लस अल्फा माइनस बी वाई कैसे आया? कौन सा बेटा? सम ऑफ द रूट से यहां से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एन अंदर रह गया, उससे मैंने डिवाइड कर दिया. नहीं सर, वो माइनस बी वाई कैसे आया? सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए होता है ना, अच्छा. राइट? और प्रोडक्ट इज सी बाई ए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो प्लीज केयरफुल. ये और इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, राइट? दैट वन. Third one. वेरी गुड. राइट डाउन द कंडीशन. सर बहुत बड़ा. जस्ट व्हाट इज द कंडीशन? Sir, मतलब it's coming in cube root. क्यूब रूट, व्हाट इज दैट? Cube root of c by a into cube root of c by a plus 1 is equal to minus b1. Just solve little bit, solve little bit. Remove this cube root now. You have to eliminate alpha now, everyone. You have to eliminate alpha, right? Eliminate alpha. सर अल्फा और अल्फा स्क्वायर है ना, वो क्या कहते हैं? One root is alpha, other root is alpha square. Should I start? Should I start? 1 minute, sir. Okay.
गेट rid फ्रॉम दिस क्यूब रूट। रिधिमा, ये क्यूब रूट को हटाओ बेटा, देखो क्या आता है क्यूब रूट हटाने से। अल्फा आ गया ना, वी हैव टू रिमूव अल्फा ऑल्सो ना। Sir, I removed the cube root. ओके, तो व्हाट इज योर आंसर? Sir, just 1 second, I will send you. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Sir, AC plus A square minus 3AB minus BQ is equal to 0. AC प्लस A square ए स्क्वायर minus 3AB minus BQ is equal to 0. I guess this could be like, this should be something like this. Something like this. Just check the calculation, please. See, first thing is, एक्सपेरिमेंट सही है क्या? we have to get rid of this ना। अल्फा भी हटाने होंगे और क्यूब रूट भी हटाने हैं बेटा, दोनों काम करने हैं। तो अभी शायद आगे और बढ़ेगा ये। और अल्फा क्यूब, क्योंकि अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब इज सी बाई, राइट। So you can write alpha is equal to c by a to the power 1 by 3, right? So this is c by a to the power 1 by 3 plus c by a to the power 2 by 3 2/3 is plus equal to minus b by a is equal to 0। नहीं, मैं उसे इधर ले आया, लेफ्ट साइड, राइट। सो कंप्लीट दिस थिंग इज करेक्ट। इज दिस ओके? क्या ये सही है? ऐसे सर। लिख, अब मैं यहाँ तक आया, उसके मैंने वो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन बताता a हूँ, की बताता हूँ, जस्ट बड़ा प्यारा सा रिजल्ट आएगा, देखना अभी। अगर मैं सर इसे, सी बाई टू द पावर 2/3 कैसे आया? स्क्वायर था ना, अच्छा, राइट। सो अगर मैं इसे a, इसे b, इसे c एज्यूम कर रहा हूँ, या x y z, राइट। तो इफ x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, तो क्या रिजल्ट आता था, याद है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की इक्वल टू 3xyz। अरे वाह, सही यही है, किया सर। गुड बेटा, राइट। तो अगर मैं पुट कर दूं लाइक क्यूबिंग दिस वन, तो c बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सॉरी, राइट, एंड b क्यूब बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 3abc, मीन्स both c by a into b by a, right? Multiplying both side by a cube, right? I'm getting a square c plus c square a plus b cube is equal to 3abc. This is a very, very, very important result. You have to remember this. See this carefully. If you want to ask anything, please ask. Satvik, okay? Why so tense? Sir, Okay. can you please check the answer that I've sent? Perfect. Perfect. So same thing. Very Okay. good. Very good. Perfect. Right. So like it could be changed into some different, right? Some form or different forms now. So we have to be careful like how to calculate this thing. Okay. Yes, sir. Right. So okay, everyone. Okay, done. Yes, sir. Okay, Abhinav, Amo, Aryan, सर Sima, Isha, Om, Susank, Dhaval. Okay. See. So now I'm changing a bit, same question in different style, right? The same question in different style. What is that? Ax square plus bx plus c is equal to 0. Alpha and beta are the roots of this equation, right? Find value of what? 1 by a alpha plus b the whole square plus 1 by a beta plus b the whole square. Right, find this.
You all have to remember these small things, right? क्या अमोक? सिंपल है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से। मैं स्टार्ट करूं क्या? No, sir, 2 minutes. Mimit, just we are doing quadratic beta, Yes, sir. Yes. right? So quadratic में ना what we have done, just for you, I'm just giving you the brief ना. Uh, just we have started with this key alpha and beta are given in that form. So find value of the product of the root, right? So like first question and the second in the same manner, right? And third, alpha and beta are the quadratic, right? If the relation between alpha and beta is given something like this, beta is equal to n alpha, then find condition, right? So one root is alpha, other is n alpha. Then we calculated with the help of sum of the root and product of the root. And third, on this question is one root is alpha, other root is alpha square, then find condition, right? So sum of the root and product of the root we have taken 2 and then eliminate this alpha, right? And again, and like the change in this, right? I have given a question ki alpha and beta are the roots, then find value of this. Almost the same question in different style, right? Careful. Okay, sir. B is a small b, Anushka. This B is a small b, huh? कैपिटल बी मेरा बेटा है. But you have to write now. Alpha and beta are not given, right? We have to find answer in terms of A, B, and C on. Alpha and beta must not be included in this, right? Alpha and beta are unknowns or the like values are not very good. Minus B plus minus root D by 2A, right? So that's not very good. See this carefully, right? सर Right. एक मिनट सर एक मिनट Okay. कोई आप में से और हेल्प करेगा क्या? कहाँ से अप्रोच लिए? अच्छा क्या कर रहे हो? आओ ना, चलो डिस्कस करते हैं बेटा। सर एक मिनट हाँ बिना बोलो प्लीज। सर मेरे को एक चीज दिखा कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस को ए अल्फा प्लस ए बीटा लिख देंगे और वेरी बी गुड, को माइनस ए अल्फा माइनस ए बीटा लिख देंगे। नॉट बैड। ये दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमको मिला 1 अपॉन ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। वेरी गुड, अब इसी के आगे सर देख रहा हूँ क्या करना है। वेरी गुड। अच्छा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन बहुत प्यारा सा ऑब्जर्वेशन मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि सर हाँ सर हम 1/a अल्फा प्लस बी को a ले सकते हैं, मतलब वेरी सम अदर b और a, और नेक्स्ट वाले को b, तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर -2a भी कर रहा हूँ मैं इसमें। नॉट बैड, नॉट बैड। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस दिस इज a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू, राइट? ये आ जाएगा a अल्फा प्लस b इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस c, right? Can I write this as
अल्फा अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1 बाई ए अल्फा प्लस। क्या ये सभी को क्लियर? ये आपको करना है, ध्यान रखो, ये सब चीजें आपको सोच के यहां तक लानी है, राइट? सो 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी इज नथिंग बट अल्फा अपॉन सी विथ माइनस सर साइन। मेरा तो 1/a अल्फा प्लस बी कुछ और आया था सर, -1/a बीटा आया था। एक बार चेक करो कैलकुलेशन फिर से। मैंने कहां से लाया ये दिखाई दे रहा है? मैंने इक्वेशन जो गिवन था उसी को लिखा, सी को मैंने ट्रांसफर किया, अल्फा यहां से कॉमन ले लिया, राइट? अब मैं इसको डिवाइड किया इधर, इसको इधर डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए डिवीजन में यही जाएगा मेरे पास। तो अल्फा अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1/this, तो 1/this इज, दोनों मेरे पास क्वांटिटी आ गए। सो नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाट इज दैट? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। Alpha square plus beta square is nothing but alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta upon c square. Alpha plus beta is minus b by a to c by a upon c square. I hope everyone is getting this. राइट? हो सकता है इसमें क्यूब दे दे, पावर और बढ़ा दे, राइट? तो वहां पर मेरे को इससे सर मेरे मेथड से भी मिल गया सर, अभी वेरी जस्ट। गुड, वही था, सेम किया तुमने और बहुत अच्छा किया अभिनव, वेरी गुड, बहुत सर बहुत डिवाइड बाय ए अच्छा स्क्वायर था। भी तो होगा ना नीचे डिनोमिनेटर में? क्या क्या क्या? सर आंसर में डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर भी तो होगा। हाँ, ए स्क्वायर भी है ना नीचे, एलसीएम लिया था ना, राइट? तो बहुत सिंपल फॉर्मेशन हो सकता है इन क्वेश्चंस पे, राइट? सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट? ए सी। अब इसी को मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, ये सब मैं आपको क्यूबिक फोर्थ पावर और एक उसके मिनट नोट करना सर, देखिए। उसके ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन आज हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए अभी कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक पर ही मैं फिक्स रख रहा हूं। हाँ, नोट कर। एंड आज थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री भी लूंगा जिसमें मैं सेवाल्स थ्योरम बताऊंगा ना, बहुत ही मैजिक है। सेवाल्स इज द मैजिक, राइट? केवल एक छोटा सा सेवाल्स एंड मिलॉज अगर पॉसिबल हुआ तो दोनों मैं आज बताऊंगा, एंड उसको धीरे धीरे यूज करना है आप, राइट? तो कोशिश करूंगा लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचा के उसको भी मैं एक बार ब्रीफ कर पाऊँ। ज्योमेट्री आपके लिए छोड़ूंगा नहीं, ज्योमेट्री आपके लिए हमेशा काम करवाऊंगा। कुछ भी रहेगा साथ में ज्योमेट्री जरूर जोड़ूंगा। ओके, डन एवरीवन? डन? अच्छा है। यस सर। ओके, लेट्स सी नाउ। सो अब मेरे पास क्या आ गया कि अगर गिवन है मेरे पास लाइक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट? whose roots are alpha and beta, right? Find value of alpha square minus 1 into beta square. चलो देखें क्या करते हो आप। Alpha and beta are the roots of this equation. Find value of alpha square minus 1 and beta square minus 1. मेरे को एलिगेंट सा, सिंपल सा, प्यारा सा सॉल्यूशन चाहिए। टेक योर टाइम।
वाह, सात्विक, नुस्खा, okay. Simil, Namok, very good. Om, not bad. Abhinav, आंसर थोड़े डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, बट नो वरी. सर 2 मिनट. थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट बेसिक. ओके, नो नो वरी बेटा, एक बार फिर से. सात्विक, अब चेंज योर आंसर सात्विक. Yes, sir. Answer change किया. ओके, ओम, थोड़ा सा और ओम, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कुछ ये हो रहा है, देखना ध्यान से. रिदिमा, रिदिमा आंसर, निमित आंसर बेटा. जील, धवल, प्रसम, श्रेयज, वेरी गुड. सिमिल, what is your answer? Sir, I sent it in the chat. Very good. Let's start. Let's start. See, why I have given this question, right? So see this carefully, right? The question is x square minus 7x plus 3. We know that this having two roots, alpha and beta. So can I write this as x minus alpha, x minus beta? Right? And what do I have to find? I have to find 1 minus alpha into 1 minus beta into 1 plus alpha into 1 plus beta. Or like you can take minus sign from this, minus sign from this, right? So you can write down alpha minus 1 and beta minus, same thing, right? So can I say ki, like from this I can say if one time I have to put value of this as -1, right? X is equal to -1 beta, right? Or second time I have to put value x is equal to +1, right? So if I'll put x is equal to, right, 1, so I'll get this one. So 1 minus 7 plus 3 is 1 minus alpha into 1 minus beta, right? And when I'll put -1, this is 1 plus 7 plus 3, that's -1 is, right, -1 minus alpha, -1 minus beta, right? So what I'm getting? 3 plus 1, 4 minus, right, -3 into 11 is equal to alpha -1, beta -1, minus common out, alpha +1, beta +1. So overall, what I'm getting alpha square -1, beta square. So this is what? -33. Very good, everyone. बहुत अच्छे बेटा. Sir, I directly multiplied 1 minus alpha and 1 minus beta. So with Vieta's relation. Right? Why I have solved by this, right? You can see this now, right? What if I'm saying no, we are not doing quadratic, just we are going one step or two steps ahead of this. What is that? Right? What does that mean? So I'm giving you x cubed plus 3x square minus 3x plus 1 or plus 2, right? Plus 2. This having roots alpha, beta, and gamma, right? Find value of one minus alpha square, 1 minus beta square, 1 minus gamma square, right? Try this. Right? This time you have not to multiply, right? You have to replicate the last method, what we have done, right? This was the question from IOQ, right? So just you have to replicate this, how you are getting this, right? Take your time, take your time. Simple one, very simple.
डन, अच्छा है, डन डन डन। सर अभी नहीं। वाह, सात्विक, वाह, understand now, it may be 4 power, 5 power, 6 power, anything, it's okay, right? We can go for that. The basic is the Vita theorem, the quadratic only, right? With the help of quadratic only, we have to get very good Anushka. बहुत अच्छे. Very good, very good. Ah, Riddhima, very good. Perfect. Perfect. Raj, fast, fast, fast. Prasam, Zeel, Abhinav, Amok. आंसर बेटा सर ट्राई कर रहा हूँ। एकदम सिंपल है। ऊपर जो था उसको रेप्लिकेट करो। ऊपर जो किया हमने, 2 रूट्स थे तो हमने एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिया। 3 रूट्स है तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। नाउ Sir, thank you much. वेरी गुड निमित, वेरी गुड बेटा। सिमिल, वेरी गुड, परफेक्ट। Right, x minus alpha x minus beta x minus gamma. Now think what we have to put in place of x so that we'll get this 1 minus alpha square. Like obviously square is there, so 2 times we have to put the values of x, right? So first time what values we have to put, second time what values you have to put, then multiply. Abhinav, very good, perfect, perfect beta. See, the question is x cube plus 3x square minus 3x plus 2 is equal to x minus alpha, x minus beta, x minus gamma. Put x is equal to 1. This is 1 plus 3 minus 3 plus 2 is equal to 1 minus alpha, 1 minus beta, 1 minus gamma. Put x is equal to minus 1 plus 3 plus 3 plus 2 is equal to minus 1 minus alpha, minus 1 minus beta, minus 1 minus gamma, right? Multiplying both this, I'm getting 3, I'm getting 6, 8, 7, minus 21, and this is minus sign common from all three. So this minus 1 to the power 3, 1 minus alpha square, 1 minus beta square, 1 minus gamma square. Minus sign giving there, right? 1 minus alpha square, 1 minus beta square, 1 minus gamma square. Very, very, very simple. Ah, double. Sign, sign, sign. You have to Sir. answer. Amok, okay. Simple, na? Yes, sir. हाँ, simple था ये. Right? Right? But the last question on this, I'm giving you, right? Okay? सर एक मिनट। This time I'll give you 4 roots, alpha, beta, gamma, and delta. Right? I'll give you 4 roots. Done, Akshay? सर लास्ट लाइन में। Okay. Done. सर हो गया। Alpha, beta, gamma, and delta are the roots of this equation, right? You have to find value of 4 minus alpha square, 4 minus beta square, 4 minus gamma square, 4
minus delta square. This time I have changed a bit. सर वो x माइनस अल्फा x प्लस बीटा है क्या? माइनस है बेटा। सर वो नीचे वाला हमें ढूंढना है वैल्यू उसकी। हाँ बेटा, इसकी वैल्यू ढूंढ। वाह विनय, वेरी गुड। सात्विक, वेरी गुड। कैलकुलेशन पे ख्याल रखना, राइट, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उतना भी खास नहीं। श्रेयज वेरी गुड, अनुष्का वेरी गुड। विनय एक बार चेक कर ले बेटा। श्रेयज वेरी गुड। सर आज किसको सपोर्ट कर रहे हो आप? मतलब ये पूछने की बात है, हैं? ये पूछने कैसे ये सवाल पूछ सकता है तू, हैं? हिंद, यस सर, बिल्कुल। हिंद की सेना। तो श्रेयस ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया को कर रहा है, वो तो खेल ही नहीं रहा है। खेल ही नहीं रहा है सर। जनरल में ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता है सर। बताओ, ये गड़बड़ा है सहज में, ये सर आज गड़बड़ा। इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो आप? आज इंडिया को कर रहा है। सी, फर्स्ट में आज न्यूजीलैंड है। आज न्यूजीलैंड है इसलिए ना, बट देख ले वो ऑस्ट्रेलिया की बाजू वाली है। अरे नहीं सर, वो एक ही को सपोर्ट करता है। ओके, एक बार टू पुट किया तो ये 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा एंड 2 माइनस डेल्टा, राइट। माइनस टू माइनस माइनस से प्लस ही हो जाने हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस बीटा, 2 प्लस गामा, 2 प्लस डेल्टा, राइट। 2 पुट किया तो ये 16 माइनस 6 प्लस 10, माइनस किया तो 16 प्लस 6 प्लस 10, क्या आ रहा है वैल्यू? दोनों के प्रोडक्ट चाहिए ना मेरे को। सर 640 आ रहा है। 640 यस सर आएगा सर। 640। 640 आ रहा है। इनका 640 6 प्लस 10 को 36 ले लिया 32 की जगह, इसलिए वैसा आया। 640, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग, राइट। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे एंड ऑब्वियसली, राइट, न्यूमेरिकल आंसर के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। एंड ये मैंने क्वाड्रेटिक के हेल्प से ही आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा दी। हाँ, इसमें अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर 4 का मैंने पढ़ा या 3 का पढ़ा या 2 का पढ़ा है। आपको 5 का रहेगा तब भी क्या करना है, यू नो दिस। 6 अगर रहे डिग्री या 7 डिग्री रहे, कितना भी डिग्री रहे, वो हम लोग हैंडल कर लेंगे। बोल सकता हूँ ये बात, राइट। एक दूसरी बात देखो, कभी कभी होता क्या है कि इक्वेशन को बहुत बड़े पावर के साथ में प्ले किया जाता है, राइट। आप में से बहुत लोगों को मालूम हो, कुछ लोगों को नहीं मालूम हो, न्यूटन वॉज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन। न्यूटन वॉज अ वेरी गुड मैथमेटिशियन एंड मैथमेटिक्स में उनके कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है, बहुत अधिक। कैलकुलस को मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, कैलकुलस के अलावे, राइट। तो न्यूटन के कंट्रीब्यूशन में क्वाड्रेटिक में एक बहुत प्यारा कंट्रीब्यूशन है, राइट। व्हाट इज दैट? उन्होंने कहा कि लाइक अगर मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू, मान लो कोई एक इक्वेशन, राइट, जिसको सॉल्व करने पर बड़े इरेशनल गंदे से रूट्स आएंगे, राइट। बड़े गंदे से रूट्स आएंगे तो उसको हमें सॉल्व नहीं करते हुए, और इसके रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा, राइट। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए हमारी लाइफ चेंजिंग रहेगा ये, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग को रखना है कि क्या कैसे इसको हैंडल करना है, राइट। अब अल्फा एंड बीटा गिवन है और मैंने कहा कि कोई ए एन मेरे पास है, वो अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन है। मतलब समझे, अगर एन को मैं 1 लिया तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एन को अगर मैंने 2 लिया तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। एन को 3 लिया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एन को 100 लिया तो अल्फा टू द पावर 100 प्लस बीटा टू द पावर 100। सर
Sir, is this that question? A10 plus 8 into 9 into A8 upon A9. Very good, very good, very good. See, and what they will ask now, find value of some pattern will be there, right? What pattern, what type of pattern? Simil, you said A10 ना, चलो मैं 10 पे ही बनाता हूँ. A10 minus 2 A8 upon A9. सर ये क्वेश्चन बहुत देखा है मैंने. हाँ, वेरी ट्रू. बहुत बार. एंड दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. मतलब हम लोगों को 10 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं चाहिए बेटा, राइट? 10 मिनट्स में ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन. सी, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पहले इसको समझना. व्हाट न्यूटन सेड, बाद में लिखते हैं ना, पहले एकदम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? व्हाट न्यूटन सेड कि ये तो बहुत ही सिंपल है. क्या? राइट, अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दिस मींस x square minus 4x minus 2 is equal to 0. Alpha and beta are roots of this. This is alpha square minus 4 alpha minus 2 is equal to 0. Right? As well as beta सर क्वेश्चन क्या था? देखता हूं, अभी 2 मिनट रुक जाओ. राइट, ये गिवन है मेरे पास. मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है, राइट, एंड सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन को दोनों साइड अल्फा टू द पावर n से, और सेकंड इक्वेशन को दोनों साइड बीटा टू द पावर n से मल्टीप्लाई करके. तो व्हाट आई एम गेटिंग? I'm getting alpha to the power n plus 2 minus 4 alpha to the power n plus 1 minus 2 alpha to the power n is equal to 0. Similarly, beta to the power n plus 2 4 beta to the power n plus 1 minus 2 beta to the power n is equal to 0. Right? अब ये जो दोनों इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? अल्फा टू द पावर n plus 2. सभी को समझ में तो आ रहा है? ये यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले यहां तक रजिस्टर कर. क्या? And this is an plus 2 minus 4an plus 1 minus 2an is equal to. यही आ रहा है. यहां तक पहले रजिस्टर कर लो. कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क. सर हम्म एक बार फिर से समझा सकते हो क्या? एकदम समझा सकता हूं बेटा. ये मेरा क्वाड्रेटिक गिवन था, राइट, जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा थे, राइट. मैंने कहा कि अल्फा इसके रूट्स हैं, तो ये अल्फा लिख के इसको इक्वेट टू 0 कर दिया, बीटा लिख के इसको 0 कर दिया, राइट. उसके बाद मैंने बोला कि न्यूटन ने जो वर्क किया, उन्होंने बोला क्या कि अल्फा टू द पावर n से फर्स्ट वाले को और दूसरे वाले को बीटा टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर दो. तो ओके, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि अल्फा बीटा 0 नहीं है तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ, राइट. तो अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन ऐसा बन गया. ये क्लियर है? एंड यस सर. सेकंड इक्वेशन मेरा ऐसा बन गया. ये भी क्लियर है? राइट. मैंने दोनों को ऐड कर दिया. दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये आ गया अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 4 टाइम अल्फा टू द पावर n प्लस 1 बीटा टू द पावर n प्लस 1. एंड ये पावर n के लिए ऐड आ गया, राइट. और यही मेरा ए n पर पावर n था, तो n प्लस 2 पर पावर n प्लस 2 होगा, राइट. n प्लस 1 पर पावर n प्लस 1 होगा. तो ये इक्वेशन ऐसा आ गया. बट इफ यू सी दिस ना, इतने लंबे चौड़े काम की जरूरत ही नहीं है हमें. क्यों? क्योंकि इफ यू सी दिस ना, इक्वेशन जो मेरे पास था वो क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहां से आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो. इसका पावर अगर n के साथ मैं करूं तो प्लस 2 है, इसका पावर n के साथ मैं करूं तो प्लस 1 है. इसमें कोई भी पावर नहीं है, मतलब n का n रहेगा. तो इसे देख के मैं सीधा बोलूंगा an प्लस 2 माइनस 4an प्लस 1 माइनस 2an इज इक्वल टू 0. एंड ये हमेशा के लिए ट्रू है. ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 डिग्री, एनी पॉलिनोमियल के लिए दिस इज ट्रू. अब मैं इतना काम आपको बताया कि हो क्या रहा है, इसके लिए ये मैंने पूरी कहानी करी. बट आपको करना क्या है? दिस इज द इक्वेशन एंड डायरेक्टली यू हैव टू राइट डाउन दिस. इज दिस ओके? राइट. Now, what is the value of n for my question? For my question, what is the value of n? Sir, 8. Very good. So this is a10 minus 4a9 minus 2a8 is equal to 0, or a10 minus 2a8 is equal to 4a9. Divide this a9, right? a10 minus 2a8 upon a9. What is this? 4. Right, this value is 4. Is this okay? Sir, मतलब we can solve this question, these kinds of question orally. हाँ. No, orally, these are the oral questions, right? But we have to be like, we have to be conscious ki like how this
we can solve, right? What the theory behind this? So this is the theory behind this, right? Easily we can do. Is this okay? Yes. Right, I'll give you 1-2 question on this, right? Please note down, everyone, please carefully note down this. This is very important. 100% we are getting few question on this, right? For any competitive examination, this is the like hot cake, including your ITJ, right? Including your ITJ advanced level, right? Like अब toughness के लिए क्या करेगा ITJ? इसमें थोड़ा सा complex मिला देगा. The same thing will be there, थोड़ा सा complex और इसमें कर देगा कि लगे वो कुछ कहानी में बड़ी बात हो रही है, but every time you will get something simple. एक क्वेश्चन मैं दूं. Done everyone? Zero, okay? Sure? Yes, sir. कहीं पर लग रहा है एक्सप्लेन करने का बेटा? नहीं, sir. शशांक, ओके? शशांक, ओके? Voice is not coming, बेटा. Okay? Sure. See. So just I'm giving you one question on this. X square minus 5x minus 2 is equal to 0. Find value of 825 minus 2, 823 upon 824. सर ए का वही है ना जैसा पहले था. And where an is alpha to the power n plus beta to the power n, माइनस भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या कोई और दूसरा भी रहता तब भी फर्क नहीं. वाह मोग, वेरी गुड, वेरी फास्ट. वाह. तो आप एक बार ऊपर कर सकते हो बस. ये कर दिया बेटा. 4 into an+1 है ना सर? हाँ. रिद्धिमा, चेक साइन, चेक साइन. Simil, very हाँ good. सर. Satvik, very good. Abhinav, very good. Simple, na? तो देखते हैं very Very simple. Okay. But as I said, na, कि this you'll get the question in cubic also or other factors also, right? We can find lot many values from this, right? Wow, very good, everyone. Sraj, very good. Abhinav, very good. Zeel, write down answer. Anushka, write down answer. सर, अमो, भेज दिया आपको. भेजा क्या? यही नहीं आया. प्रसम, आंसर. अक्षय, वेरी गुड. ईशा, ओम, रील, चेक आंसर, चेक आंसर. धवल, निमित, आंसर. May I start? yes. From this, I can say, this is nothing but, from this equation, I can say, an plus 2 minus 5, an plus 1 minus 2, an is equal to 0, right?
this I can transfer an plus 2 minus 2an is equal to 5 times of an plus 1. What value I have to put for n, right? So lowest is n is, right, 23. So this 825 minus 2 into 823 upon this is 824. That is equal to 5. Why 4? Huh? तो मैंने इक्वेशन में 4an प्लस 1 लिया 4? ठीक है ना? Understand ना? Right? So we can find different values on this, right? Okay, everyone. Nimit, okay? Yes, sir. I got 5. Dhaval, Dia, Sasank, okay? यस सर वही आया Dia, okay na beta? See, now. So this is the concept when we are saying like we have to get values, the Newton theorem, like Newton identity we have to use. So like we know okay how to use this Newton identity, right? So, okay, right? So next, a little bit geometry, as I said, right? Sevas theorem, right? What is this Sevas theorem? हाँ तो प्लीज एवरीवन 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, हाँ, क्योंकि 2 थ्योरम यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए, राइट? मैं प्रूव नहीं करने जा रहा हूं बट उसके यूज कैसे हैं वो बताने जा रहा हूं, राइट? व्हाट इज दैट? ये सेवास एंड मिन लॉस, ये 2 थ्योरम। ये पहला थ्योरम जो है दिस इज कॉल्ड सेवास। व्हाट इज दिस सेवास थ्योरम? मैंने एक ट्रायंगल लिए ABC, तो ट्रायंगल की ना बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग अभी साथ साथ में हम लोगों ने पढ़ा भी था। ऑल्टीट्यूड, राइट? उसके बाद हमने इन सेंटर, सरकम सेंटर, राइट, सेंट्रॉयड, राइट? ये सब पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें एक बहुत मजेदार सी चीज आई थी कि अगर मैं कोई भी अगर मीडियन की ही बात करूं, राइट, तो ये तीनों मीडियंस जो थे किसी एक पॉइंट पर ये कट करते हुए जा रहे थे, राइट? राइट, ये एक पॉइंट पर कट करते जा रहे थे। यही मेरा सेंट्रॉयड था। सेंट्रॉयड के अलावा इन सेंटर भी, राइट, सरकम सेंटर भी, ये सब अलग अलग हमारे पास वर्किंग रहते हैं, राइट? सेवाज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपने इस तरह के ट्रायंगल बनाए, राइट, और इंटरनली आपको कोई एक पॉइंट मिल गया जहां पर ये कट कर रहा है, राइट? इंटरनली एक पॉइंट आपको मिल गया जहां पर ये कट कर रहा है, राइट? तो जहां पर ये कट कर रहा है अगर इंटरनल पॉइंट है, देन आप किसी एक साइक्लिक ऑर्डर में, कोई भी एक साइक्लिक ऑर्डर, राइट, कहीं से भी आप स्टार्ट करें, राइट? मान लो मैं बी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट? तो व्हाट इट सेज BD अपॉन DC, राइट? साइक्लिक ऑर्डर में फिर मैं कहां पहुंचा? CE अपॉन EA इंटू AF अपॉन FP, प्रोडक्ट 1, राइट? ये साइक्लिक ऑर्डर ना। आप हमेशा एक चीज को पकड़ के चलें, ये साइक्लिसिटी के साथ में कहीं से भी आप एक जगह से स्टार्ट कर लें, राइट? तो मैंने यहां पर से स्टार्ट किया, राइट? सो व्हाट आई एम टेकिंग, फर्स्ट मैंने लिया PD TC, देन CE EA, देन AF FP, राइट? प्रोडक्ट विल बी, राइट? मतलब किस तरह से आपको क्वेश्चन, मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन फ्रेम किया यहाँ पर, अच्छा सेंट्रॉयड में तो ये 1:1 ही होता है, 1:1 होता है, 1:1 होता है, राइट? तो यू विल गेट दिस वन। एक बात बताओ, अगर मैं यहीं पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करता हूं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर याद है ना? ये दोनों ABC, राइट? अगर ये लेंथ C है, ये लेंथ B है, और इस लेंथ को मैं A बोल रहा हूँ, राइट? याद करो BD टू DC के लिए क्या बताया था मैंने, किस रेशियो में होता है? AB to AC, AB टू AC या C टू B लिख दूं फर्स्ट, राइट? अगर मैंने B से पॉइंट लिया, राइट? अच्छा,
एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, ये जो है BD टू DC जो है, ये जो साइड के रेशियो है उसी में डिवाइड होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा। अगर मैं यहां पर ले लूं दूसरा पॉइंट, तो CE इज टू AE क्या होगा, बताओ तो। CE इज टू AE मतलब ये BC वाली, is to BA. ये वाली, मतलब ये होगा A इज टू C, राइट। और अगर मैं यहीं पर एक और लाइन ले लूं, और वो मैं यहां से, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, राइट। F, तो AF इज टू FB, ये क्या होगा, राइट। ये वाला इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, तो कौन सा रेशियो होगा, B इज टू, B is to A. राइट। ये तीनों आ गए। तो सेवाज थ्योरम क्या, क्योंकि ये इंटरनल में एक पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरनली पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सेवाज थ्योरम के लिए हमने क्या रखा, कोई भी एक साइक्लिक ऑर्डर लेने, यही ले लेता हूं क्या, BD इज टू DC इंटू CE इज टू EA इंटू AF इज टू BF, को 1 होना चाहिए। देख लेता हूं आ रहा है या नहीं, देखें। ये आया C/B इंटू A/C इंटू B/A, A कैंसल, C कैंसल, B कैंसल, 1, राइट। फिर से ये रिजल्ट तो है हमारे लिए, राइट। तो वो बोलता है केवल नोन नहीं, कोई अननोन भी आपके पास हो, कि अगर ये तीन कॉन्करेंसी के साथ में काम कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है जो कॉन्करेंट है, राइट, तो हमेशा ये साइक्लिसिटी आपके लिए काम करेगा। यूज क्या, बहुत बड़ी यूज है, बहुत जगह पर यूज है। कैसा, ये देखो, ये सबको क्लियर है। तो जल्दी से एक चीज बताओ, अगर मैं एक ट्रायंगल बना लिया, राइट, इस ट्रायंगल में ये भी मीट करा देता हूं, ये भी मीट करा देता हूं, और ये भी मीट कर, राइट, कॉन्करेंट है। एक पॉइंट मान लेता हूं O पे, ये ABC है, इसे नाम दे दिया DEF, राइट। तो BD इज टू DC मेरे को दिया हुआ है 2:3, CE इज टू EA मेरे को दिया हुआ है 3:4। फाइंड, फाइंड क्या करना है उसको ध्यान देना, AB इज टू AF, क्या ये ऊपर नोट करना है तो नोट भी कर लें प्लीज, पहले नोट कर ही लें एक बार, ये दोनों को पहले नोट कर लें, उसके बाद इस पे आते Sir, हैं। I sent the answer. वेरी गुड। रिद्धिमा, एक मिनट बेटा, क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ ना। ये नोट हो गया होगा, तो ये क्वेश्चन ये, हाँ, केयरफुल ना, निकालने को मैंने कुछ और दे दिया है, ध्यान रखना। मैंने साइक्लिसिटी किसी और की बताई है, निकालने को कुछ और दिया है, और वो फर्स्ट क्वेश्चन में देने का रीजन यही है कि आपको वो सबसे अधिक केयरफुल रहना है कि हो सकता है ट्विस्ट हो लास्ट में, राइट, कि आप रेशियोज निकालने में कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, बट आंसर जो पूछा जा रहा है वो रेशियो AF इज टू FB की जगह कुछ और पूछ दिया गया, राइट। तो यू हैव टू बी केयरफुल। रेशियो निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी, बट आंसर के फॉर्म जो है ना, लाइक केयरफुल रहना पड़ेगा, वो गलत होने के चांस रहेंगे। वाह सात्विक, वेरी गुड। सुमिल, वेरी गुड। रिद्धिमा, एक बार चेक करो बेटा। ओम, जस्ट चेक दिस आउट। write down everyone, write down. वेरी गुड रिद्धिमा, वेरी गुड। थोड़ा सा चेक करो, AB और AF में कौन बड़ा है, AB या AF, राइट, यू कैन सी दैट, राइट।
हाँ हाँ, वेरी गुड। अक्षय, अक्षय एक बार चेक करो। धवल, वेरी गुड, वेरी गुड। सुरेश, ये क्या भेजा? 17/5 कैसे? 17 का तो टर्म ही नहीं है मेरे पास। सर नहीं, फिर से चेक कर। शशांक, शशांक, राइट डाउन आंसर। ईसा, दिया, वेरी गुड, वेरी सर गुड। आंसर भेजा। Yes, 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 Prashant. Very good. See, perfect, perfect, perfect. Very good, everyone. See. So from this I can say, फिर मैंने बोला कि कोई एक cyclic order लेने हैं तो I'll go for this, right? Any cyclic order. So BD is to DC into CE is to EA into AF into FB is equal to 1. BD by DC is 2 by 3 into 3 by 4 into AF by FB is equal to 1. 3, 3 cancel out, 2, 2 cancel out. This 2 by 1, right? This is 2 by 1, right? And what we have to find now? AB, right? So AF by FB is 2:1. Or I can take the reciprocal. So FB by AF is equal to 1 by 2, adding 1 both sides. So AF plus FB is AB only. AB by AF is equal to 3 by. Very good, everyone. Zeal, very good. Sage, very good, beta. बहुत अच्छे. Okay? Right? So this is Sevas, right? तो सेवाज है, सेवाज में सर मैंने भी तो यही भेजा था। यही भेजा था। वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड, राइट नाउ। एक ठीक है ना, ये क्लियर है सभी को? ओके, ओके, हाँ बोलो तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक और क्वेश्चन कर लें। दोनों बात बोल रहा है तू तो, ऐसे 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 तो दोनों कर रहा है। प्रसम, अक्षय, धवल, रील, सर एक और से एक और यस सर। से DF। मैं रेशियो पे थोड़ा सा प्ले करूंगा, जस्ट केयरफुल ना। राइट, केयरफुल। एक इसके बाद एक और है, वो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाएगा ना, तो केयरफुल ना। ये करने के बाद जाऊंगा, बट पहले आपको निकालना है BD, DC, CE, CA, ब्ला ब्ला ब्ला, देन वी हैव टू गो फॉर दैट। Sir, I said to answer. Is it correct? वेरी गुड सिमिल। वेरी गुड सात्विक। मूव, थोड़ा कैलकुलेशन चेक करो बेटा। देखें, Zeal, very good. Understand this ना, गुड 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 गुड। Riyaj,
इतने बड़े बड़े नंबर कैसे आने श्रेय तेरे को? 19 by कैसा कैसे? सर मैंने 19 नहीं भेजा। अच्छा इस बार हाँ। अमो 13/9 कैसे? मैंने कुछ भेजा। वेरी गुड अमो, वेरी गुड सर मैंने अभिनव। कुछ और भेजा है। अक्षय गलत है क्या? ठीक लग रहा है। देखो BD by DC, right? BC is 4, BD is 3. So this is 3:1. ये है right? EC by AE, this is 4:2, right? ये मुझे निकालना है right? So this 3/1 into 4/3 into AF by FB is equal to 1. कितना सिंपल काम कर रहा है ये पूरा, देख रहे हो? AF by FB की वैल्यू हो गई 1/4, राइट? फिर रेसिप्रोकल लेके अपने को काम करना है, राइट? 5:1. वेरी गुड धवल, एवरीवन, वेरी 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 गुड। सो वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया। एक छोटा सा और काम करवाता हूं ना। दूसरा जो थ्योरम है, सेवोल्स के ब्रदर थे मेनलॉस, राइट? उन्होंने क्या किया, बोला कि अंदर में पॉइंट है, वहां कॉन्करेंसी के साथ तो सिंपल से हो जा रहा है, राइट? अगर इसी पॉइंट को बाहर रखा जाए तब क्या? अगर यही कॉन्करेंसी, तो थोड़ा सा वो देखने में गड़बड़ लगता है, थोड़ा सा देखने में गड़बड़ लगता है, बट अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो ऑब्वियस सी बात है इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट? गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। मान लो मैं ऐसा ही ट्रायंगल जानबूझ के बनाता हूं। क्यों ऐसा बनाया कि मैं यहां पर एक राइट, एक ये लेता हूं कुछ यहां पे, राइट? और इसी से एक ये लेता, राइट? तो ये मेरा गिवन ट्रायंगल है जो दिख रहा है आपको ना, ABC। हो सकता है थोड़ा सा आपको एक बार नजर में दिक्कत हो, बट फिर भी ना। और ये पॉइंट है मेरा D, राइट? मैंने जो शुरुआत में आपको बोला था ट्रायंगल कौन सा है उसको पहले केवल आपको ध्यान पे रखना है। तो ये ट्रायंगल है, ये तो ध्यान पे रहेगा, राइट? ये ट्रायंगल है, ये तो मेरे को ध्यान पे रहेगा। आपको केवल जो आपका होमवर्क रहेगा, ऐसा ट्रायंगल बार बार बना के आपको खुद से लिखते जाना है। मिनली मेनलॉज वाले सेबॉज में दिक्कत नहीं होती, मेनलॉज के ट्रायंगल बना के बार बार खुद से देखना कि क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला लिखे, कौन सा फॉर्मूला लिखूं। अब यहां पर भी मैं साइक्लिक ऑर्डर लूंगा जैसा पहले बोला था, लेकिन ट्रायंगल के साथ चलना है, इसलिए ध्यान से सब लोग एकदम स्क्रीन पे, राइट? ये डी तक गया, फिर सी तक गया, फिर मान लेता हूं ये ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, फिर ये गया, राइट? ऐसा जाता है, मतलब BD इज टू DC इंटू CE इंटू EA इंटू AF अपॉन FB इज इक्वल टू 1। क्या साइक्लिसिटी नजर आ रही है सभी को? साइकिल कैसे बन रहा है नजर आ रहा है? राइट डाउन एवरीवन। क्या साइकिल नजर आ रहे हैं? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तो सर मे BD भी by DC कैसा? सर BD by BC होगा ना, DC नहीं BD होगा। by BC होना चाहिए। बेटा ये वाले पॉइंट से आप ले रहे हो ना, तो यहां से यहां और यहां से यहां, पॉइंट ये वाला है ना, यहां सर से पूरा कैसे होगा पर BD by BC होगा ना? एक्सटर्नल डिवीजन इसको बोलते हैं ना। हाँ सर बी से समझा। आपने B तक लिया, D से आपने C तक लिया ना, फिर C से E तक, E से, क्योंकि ये वाले पॉइंट पर एक्सटर्नल है और इन दोनों पर जो E और F पॉइंट है उस पर इंटरनल, राइट? तो जहां से आपने D लिया वहां से एक्सटर्नल डिवीजन, राइट? या अगर आप थोड़ा सा इसको बोलो कि नहीं मुझे कोई और तरीके से सेवॉल्स के तरीके से ही सोचना है, सोच सकते हो आप। उस समय के लिए आपको एक एक्सटेंशन करके ये बनाना होगा। अब ट्रायंगल में आप बोलोगे जो हमारे पास है, राइट, B पॉइंट के लिए हम लोग ये पूरा काम करना चाहते हैं, तो वहां के लिए कुछ अलग बात होगी, उसको सेवॉल्स में ही अलग से बोला जाता है। बट मैं बोलूंगा इसको रीड करना सीखें, क्योंकि बहुत बार क्या
ट्रायंगल में अधिकतर टाइम आपको यही मिलेगा, इसी तरह का कुछ टाइम, राइट। कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे अगर ध्यान दो क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो लाइन आई, एक उसके बेस के साथ में रही और एक उसको ट्रांसवर्सल कट कर रही, राइट। अगर बाहर के पॉइंट से दो लाइन आए, दो रेज आए, कौन कौन से रेज, एक रेज आया जो बेस लाइन पर ही रहा और दूसरा उसको ट्रांसवर्सल कट करते हुए निकल जाता है, राइट। तब हमने डी से स्टार्ट किया, स्टार्ट जहां से हुआ डीबी बाई डी सी, सीई बाई ई ए एफ बाई, राइट। तो मैं केवल एक ट्रायंगल आपके लिए बना रहा हूं, जस्ट यू हैव टू से कि सर ये ऐसा बन रहा, राइट। बनाओ। अब मैंने जानबूझकर ट्रायंगल को थोड़ा सा टिल्ट किया है। आप चाहें इसको बना के घुमा लें, जैसे आपको रखना चाहते हैं रखें। हम बताएं क्या क्या लिखना। साइक्लिसिटी कहीं से भी आप कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। सर क्या करना है इसमें? आप फॉर्मूला लिखो बेटा, कौन कौन से तीनों मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू बनाएगा, राइट्स कौन कौन से हैं, कैसे बन रहा है। आप कहाँ से, मैं करके दिखाऊं, कहाँ से लेना चाहोगे। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर भेजा। चेक करो एक बार बेटा, सात्विक। Satvik, check this out. D is the external point, not C. Satvik, D is the external point. मैं लिखूं? रिदिमा, आहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से। ओके, वाह, वेरी गुड रिदिमा, वेरी गुड धवल। वेरी गुड धवल, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। अक्षज, सर मैंने उल्टा कर दिया शायद से। हाँ थोड़ा एक मिनट देखने दो मेरे को। डी ए बाई सी बी, फिर इधर आता ना बेटा, उधर चला गया तुम्हारा। पी एफ बाई बी, बी एफ बाई सी, सी सी। ये डी का पॉइंट है यहाँ। क्या बोलते हो, यहां से लूं, बी से लूं, बी से लूं, जो मेरे पास नीचे दिख रहा है उसी से ले सर लेते। अब सही है ना? सर मैंने उल्टा कर दिया था। अभी दिखाता हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से अगर मैं ले रहा हूं, तो बी से मैं स्टार्ट किया, तो पहले मैंने लिखा बी एफ बाई एफ सी, राइट। फिर मैंने लिखा सी डी बाई ए डी, राइट। फिर मैंने लिखा ए ई बाई ई बी। चलेगा? या अगर आप यहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो, कर लो वहीं से स्टार्ट, राइट। आप सर ए ई बाई ई बी लास्ट में कैसे आएगा? हम ये डी से जा ए रहे हैं है, तो। ये ए बी है बेटा। इंटरनल ये है, इंटरनल ये दोनों है, ये एक्सटर्नल ना। ओ, समझा सर। देखो डी ए, अगर यहीं से लेना चाहते हो, आप इधर से जाना चाहते हो, इधर से भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप कोई भी ऑर्डर रख लो, चलेगा, उसमें कोई आपको मतलब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर डी से लूं, तो डी ए, राइट, डी ए बाई डी सी इंटू सी एफ बाई एफ बी इंटू बी ई बाई ई ए इज इक्वल टू, इज दिस ओके?
हाँ, इस पर इतने क्वेश्चन होंगे, इतने क्वेश्चन कि आप you'll enjoy that. बट इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना, राइट। इस फिगर को बार बार आपको करके रखना है, राइट। एंड इस वीक में होली भी है, एंड आप लोगों के साथ में मेरे को एक लेक्चर और भी रखने हैं, तो एक बार मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सब लोग जहां पर कंफर्टेबल होंगे कोशिश करूंगा ट्यूसडे को, नहीं होगा तो हम लोग लेक्चर रखें, ठीक है ना, राइट। शाम को ही रख लेंगे या सर लेट होली नाइट। वाले दिन लेक्चर को थोड़ा बाद में रख सकते हो क्या? देखता एक हूँ, घंटा लेट सर। देखता हूँ होली वाले दिन रख भी पाऊंगा कि नहीं, वो भी दिक्कत है, इसलिए मैं पहले कर दूंगा लेक्चर और आगे बढ़ा दूँ, ठीक है। ओके सर। होली खेलना है ना। हाँ सर, इस बार पिचकारी नहीं सर, सिर्फ वाटर बलून। क्यों सर क्यों आजकल अच्छी पिचकारी नहीं मिलती। अच्छी नहीं मिलती? नहीं सर।